اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سحر کبھی فردا ہے کبھی امروز، وہ سحر کبھی فردا ہے کبھی امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستانی وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستانی وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت دہم کے سبق نمبر 4 نظریہ پاکستان کے مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس صفحہ نمبر 21 کھولیے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے تعارف میں ہم 2 اور 3 طرح سے اہم نکات کو جانچیں گے، یعنی سب سے پہلے حالات زندگی یعنی شخصی تعارف، پھر طرز تحریر کی خصوصیات یعنی ادبی تعارف اور تصانیف۔ صفحہ نمبر 21 اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے ہے، اور جن اہم نکات میں ہم اس تعارف کو تقسیم کریں گے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے ہم حالات زندگی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان سن 1912 میں بھارت کے ایک شہر جبل پور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے MA اور LLB کی ڈگریاں حاصل کی۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے کتنی ڈگریاں حاصل کی؟ 2، یعنی ایک MA اور دوسری LLB کی۔ پیشہ ورانہ زندگی کی درس و تدریس سے شروع کی۔ پیشہ ورانہ زندگی کہاں سے شروع کی؟ انہوں نے درس و تدریس سے، یعنی معلم ہو گئے۔ پہلے کنگ ایڈورڈ کالج میں رہے، پھر ناگپور یونیورسٹی سے فارسی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔ پہلے کہاں رہے؟ کنگ ایڈورڈ کالج میں، پھر ناگپور یونیورسٹی سے فارسی میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی یعنی PhD کی ڈگری لی، اور اردو میں D.Litt کیا۔ اردو میں کیا کیا؟ D.Litt کیا، اور ناگپور یونیورسٹی میں ہی تدریس کے شعبہ سے وابستہ بھی ہو گئے۔ ناگپور یونیورسٹی جہاں انہوں نے فارسی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی تھی، اردو میں D.Litt کیا تھا، وہیں پہ وہ تدریس کے یعنی مدرس کے یعنی استاد کے شعبے سے ان کا تعلق جڑ گیا، استاد ہو گئے، اور وہاں صدر شعبہ اردو کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ صدر شعبہ اردو کی حیثیت سے وہ کام کرنے لگ گئے۔ پاکستان بننے کے بعد سن 1948 میں پاکستان آ گئے۔ پاکستان بنا تو سن 1947 میں نہیں بلکہ اگلے سال سن 1948 میں وہ پاکستان آئے، اور اسلامیہ کالج کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دینے لگے۔ کون سی کالج میں؟ اسلامیہ کالج کراچی۔ اور کراچی میں قیام کے دوران اردو کالج میں بھی اپنی خدمات انجام دیں۔ اس دوران میں انہوں نے اردو کالج میں بھی اپنی خدمات انجام دیں، وہاں بھی مدرس ہوئے۔ سن 1956 میں سندھ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں کون سے سن میں؟ سن 1956 میں شعبہ اردو کے وہ پروفیسر بھی، اردو کے شعبہ میں پروفیسر بھی مقرر ہوئے۔ کچھ عرصہ حیدرآباد میں قیام پذیر رہے، کچھ دیر وہ حیدرآباد میں وہاں انہوں نے قیام کیا، وہاں رکے رہے، اور جام شوروں یونیورسٹی حیدرآباد سے بحیثیت پروفیسر اردو ریٹائر ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان عہد حاضر میں اردو ادب کی ان ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ عہد حاضر آج کے دور میں اردو ادب کی ان شخصیات میں، عظیم شخصیات میں گنے جاتے ہیں جنہیں زبان و ادب کی آبرو سمجھنا چاہیے، زبان و ادب کی، لٹریچر کی کیا سمجھنا چاہیے؟ عزت سمجھنی چاہیے، یعنی کہ جو انہوں نے کام کیا ہے اور اردو ادب کو جہاں تک پہنچا دیا ہے وہ خاص خدمات ہم بھول نہیں سکتے۔ ان کا انتقال سن 2005 میں ہوا۔ اسٹوڈنٹس آگے دیکھتے ہیں ان کی طرز تحریر کی خصوصیات۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ایک صاحب طرز انشاء پرداز ہیں۔ صاحب طرز یعنی اپنی طرز کے لکھنے والے، ان کا انداز دوسروں سے مختلف ہے۔ وہ اپنے فن کی پختگی میں نہایت دیانتداری سے کام لیتے ہیں، اپنے فن میں یعنی اپنے لکھنے کے فن میں وہ جو بھی لکھتے ہیں وہ خلوص سے لکھتے ہیں، دیانت سے لکھتے ہیں،
और इनकी तहकीक का मयार बहुत बुलंद है। चूँकि स्टूडेंट्स तहकीक और तनकीद में एक मुकाम है इनका, उनके तसानीफ आप देखेंगे जो आपको मैं वीडियो सेंड करूँगी तो देखिएगा कि कितनी इनकी तसानीफ हैं, ज़्यादातर तहकीक और तनकीद पर हैं, हालात ज़िंदगी पर हैं, जो उन्होंने जिस पर हमने कलम उठाया है। देखिए, तहकीक का मयार बहुत बुलंद है। इन्होंने जो रिसर्च की है, तहकीक की है, तहकीक हक से है, यानी कि सच कहना, उसका मयार बहुत बुलंद है। तारीखी एतबार से हम इन्हें एक बड़ा तारीखदान कह सकते हैं। अगर देखा जाए कि इन्होंने कितने तरह के उन्वानात पर, मौज़ूआत पर तहकीक की है, तारीख लिखी है, तो इस एतबार से, इस वजह से हम इन्हें एक तारीखदान भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा तारीखदान कह सकते हैं। तारीखदान किसको कहते हैं? जो तारीख लिखता है, गुज़रे हुए वाक़यात को तारीख को रकम करता है। सच्चाई, दयानतदारी, खुलूस, मोहब्बत और सदाकत इनके असलूब की नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं। इनके असलूब की नुमायाँ ख़ुसूसियात कौन सी हैं? सच्चाई, दयानतदारी, खुलूस, मोहब्बत और सदाकत। जो लिखा है खुलूस से लिखा है, जो लिखा है दयानत से लिखा है, और तहकीक का सच्चाई से हक भी निभा दिया है, सदाकत से उसको रकम किया है। तो यही इनके असलूब की, इनकी ज़ुबान की ख़ास वाज़ेह ख़ुसूसियात हैं। गर्ज ये कि डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान अपनी तहरीरों के एतबार से उर्दू अदब के एक गैर फ़ानी मुकाम पर फाइज हैं। ऐसे मुकाम पर वो मुतमक्किन हैं जिसको कभी फना नहीं, जिसको कभी ज़वाल नहीं होगा। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान की तर्ज़ तहरीर की ख़ुसूसियात मंदरजा ज़ैल हैं। उनके तर्ज़ तहरीर की ख़ुसूसियात कौन कौन सी हैं, हम देखते हैं स्टूडेंट्स। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान एक साहिब तर्ज़ इंशा बर्दाश्त हैं और वो अपने फ़न की पुख्तगी में नहायत दयानतदारी से काम लेते हैं। इनकी तहक़ीक़ का मयार बुलंद है। तारीख़ी एतबार से हम इन्हें एक बड़ा तारीख़दान कह सकते हैं। सच्चाई, दयानतदारी, खुलूस, मोहब्बत और सदाकत इनके असलूब की नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं। पर ये कि डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान अपनी तहरीरों के एतबार से उर्दू अदब के एक गैर फ़ानी मुकाम पर फाइज हैं। तो यही इनकी खासियत है जो इनकी तहरीरों का हिस्सा है। देखिए, अखलाक व नसीहत डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान के असलूब की नुमायाँ ख़ुसूसियत है। एक अखलाक और एक नसीहत को वो बरूए कार लाते हैं। वो मुसलमानों को दुनिया में एक रोशन कौम के तौर पर रोशनास कराना चाहते हैं। रोशनास यानी मुतारफ़ कराना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि मुसलमान ऐसे अक़दार अपनाएं कि पूरी दुनिया में इनका अपना एक अलग रंग और मुकाम और हैसियत हो। दूसरी ख़ास ख़ुसूसियत इस्लाम से मोहब्बत है। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान को इस्लाम से मोहब्बत है और वो इस्लाम को पूरी दुनिया में सरबुलंद देखना चाहते हैं। इसलिए वो मुसलमानों को तलकीन करते नज़र आते हैं कि वो इस्लामी कदरों को अपनाएं, इस्लामी तौर तरीक़ों को अपनाएं, ताकि इनका अपना अलहदा कौमी तशख़्ख़ुस उजागर हो सके। इनकी कौमी तशख़्ख़ुस, इनकी जो पहचान है, इनकी जो शख्सियत है, वो उजागर हो, वाज़ेह हो, लोगों के सामने हो कि ये अलग से कौमी तशख़्ख़ुस रखते हैं, ये इस्लामी और पाकिस्तानी कौम है, और यही इस्लाम की बुनियाद भी है। स्टूडेंट्स, उन्होंने जो कलम उठाया है तो वो उन्वानात, मौज़ूआत क्या हैं, वो आपके सफ़ा नंबर 21 के इख्तिताम पर दिए गए हैं, और आप इनकी तसानीफ जब देखेंगे तो भी आप अच्छी तरह जान जाएंगे कि ये मौज़ूआत कौन कौन सी हैं, इन पर किताबें कौन कौन सी तसनीफ़ की गई हैं। उन्होंने मज़हब, पाकिस्तानियात, अदब, तसव्वुफ़ और अखलाक जैसे मौज़ूआत पर लिखा। इनकी तहरीरें ज़्यादातर मुअर्रब व मुफ़र्रस होती हैं। मुअर्रब यानी कि अरबी ज़दा हैं, अरबी ज़ुबान से मुतल्लिक़ा हैं, और मुफ़र्रस का मतलब फ़ारसी ज़ुबान से मुतल्लिक़ा हैं। फ़ारसी ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया है। फ़ारसी और अरबी ज़ुबान का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। आम क़ारीन के लिखे गए मज़ामीन और कुतुब की ज़ुबान सादा, सलीस और आफ़हम है। अब आप यही सोच रहे होंगे, अगर मुअर्रब और मुफ़र्रस हैं तो हम जैसे जो लोग हैं
जो अरबी और फारसी को इतना नहीं जानते तो वो किस तरह पढ़ सकेंगे। उन्होंने आम कारीन के लिए, आम कारीन, कारी की जमा है पढ़ने वाले, पढ़ने वालों के लिए इन्होंने ऐसे मज़ामीन और कुतुब लिखी हैं जिनकी ज़ुबान सादा, सलीस और आम फहम है। सलीस है, रवां है, और आम फहम है, आम फहम है, आराम से आप समझ सकते हैं। उन्होंने उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में 100 से ज़्यादा कुतुब तसनीफ़ की हैं। स्टूडेंट्स, कितनी तसनीफ़ की हैं किताबें? 100 से ज़्यादा। कौन कौन सी ज़ुबानों में? 4 ज़ुबानों में। कौन कौन सी ज़ुबान है? उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेज़ी। इनकी कुतुब में जो ख़ास आपकी इस किताब में मौजूद हैं स्टूडेंट्स, वो 4-5 नाम हैं, ज़रा गौर से सुन लीजिए। सैयद हसन गज़नवी की पहली तसनीफ़, दूसरी सिराजुल बयान, तीसरी इकबाल और कुरान। इसके अलावा 2 मौज़ूआत जो शामिल हैं, इसका मकसद ये है कि इन मौज़ूआत पर बहुत सी किताबें तसनीफ़ की हैं। इस मौजू पर किताब तसनीफ़ नहीं की, इस मौजू पर बहुत सी किताबें तहरीर की हैं उन्होंने। आप ज़रूर इनके तसनीफ़ की लिस्ट देखेंगे जो मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ। वो है हयात और कारनामे। बहुत से शख्सियात के इन्होंने हयात और कारनामे पर कलम उठाया है। और इसके अलावा दूसरा जो मौजू है वो तनकीद और तहकीक है। तनकीद और तहकीक से काम लेते हुए भी बहुत सी तसनीफ़ इन्होंने तसनीफ़ की हैं। स्टूडेंट्स, आप तारुफ को अच्छे तरीके से याद करेंगे इन्हीं निकात के नज़रिए से जिस तरह के मैंने आपको बयान किया है। आप इनके सवालन जवाबन निकात लिखते हुए कॉपी पर तहरीर करेंगे, मुख्तसर सवाल बनाते जाइए और उसके आप जवाबात इस तारुफ से लिखते चले जाइए। मारूज़ी सवालात के तौर पर इसको तैयार करें स्टूडेंट्स, ये लाजमी है इसलिए क्योंकि ये MCQs का हिस्सा हैं। उम्मीद बखैर आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अपनी कॉपी को खुशखत रखिए और इंडेक्स को साथ साथ मुकम्मल करते चले जाइए। वस्सलाम।